जय हिंद डियर एसएसबी एस्पिरेंट्स। आज मैं आपको कुछ बॉडी लैंग्वेज हैक्स के बारे में बताने वाली हूँ। तो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू 9 बॉडी लैंग्वेज हैक्स विच आर यूज्ड for any of your SSB interview and further for your recommendations. So today this video is very much useful for you all I guess. And उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि जो बॉडी लैंग्वेज है ये आपकी आवाज़ से ज़्यादा साइलेंटली नहीं बल्कि पावरफुल होके बोलती है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरह के कम्युनिकेशंस होते हैं, जिसमें हम इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के अंदर हमारे बॉडी लैंग्वेज को लेके आते हैं, इसीलिए दे आर मोर powerful and strengthful than your original voice. So please watch this video completely because that's going to help you a lot in your SSB interview. Let's start this video. So particularly what is the first thing which is to be considered in your body language is consider your actions. Basically actions जो होते हैं that is something which gives you power. एक्शंस मतलब आप जो अपना एक्ट कर रहे हो एसएसबी इंटरव्यू में, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो उसे ध्यान में रख के करो कि क्या ये चीज़ें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर मैं कुछ कर रहा हूँ ऐसा तो इसका इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा। अगर आपने ये दो चीज़ें बिफोर डूइंग एनी ऑफ योर एक्शंस यू हैव कंसीडर्ड, दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू अ बेटर एंड वाइज डिसीजन in your SSB interview. Let's go for the next. Next is consider your entrance. कैंडिडेट्स एंट्रेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आप लोग को लगता है कि इट डज़ नॉट मैटर बट इट मैटर्स अ लॉट. It matters from the perspective of giving an impression to your assessor. Basically when you enter the room and when you take the deep breath and you are asked to sit down, so please all these things you follow properly. Greet your interviewer or assessor whenever you are meeting. This should be all the things which you have to be careful about, क्योंकि आप क्या सोचते हो कि आपको लगता है it does not matter, only the content matters inside your brain and in your personality. But no, these are the things which makes your impression. As I am telling you that body language is something which helps in building your impression. That's why it's very important in following your SSB interview. इसीलिए आपको एंट्रेंस पे भी अपने ध्यान देना है. आपको जैसे बताया जाए आप वैसे एंटर होइए, किसी भी पर्टिकुलर असेसर के सामने जाइए, ग्रीट करना मत भूलिए. Be patient, be calm, and until do not try to do something which you are not asked for, and do not sit even if the chair is kept before until unless you are being told to be seated. So all these things you have to also follow. Let's go to the next one, which is स्पीक एलोक्वेंटली. बेसिकली आपको अपने स्पीकिंग पावर पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आप जो बोल रहे होते हो उसको सोच के बोलना एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज. क्यों? क्योंकि अगर आप बोलते हो और उसमें आप प्रॉपर यूज़ ऑफ हैंड जेस्चर्स एंड बाकी सारी चीज़ों का यूज़ कर रहे हो, देन ये एक बहुत ही तरह का एक मिक्स टाइप ऑफ स्पीकिंग होता है. एंड मिक्सड एक्सप्रेशंस आर ऑलवेज बेटर एक्सप्रेशंस. उसमें से लोग आपको देख के बेटर समझ सकते हैं, because your body language goes along with whatever you are speaking, and that says that you are speaking from inside. That's why आपको बोलने में बहुत ध्यान देना है. एक और चीज़ आपको ध्यान देनी है विच इज़ अबाउट योर टोन, विच इज़ अबाउट योर रिदम ऑफ योर स्पीकिंग. आपका मॉड्यूलेशन, आपका जो वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट एबल टू मॉड्यूलेट योर वॉइस प्रॉपरली एंड इफ़ योर एक्शंस आर नॉट denominated from your speech or from your voice, then it's of no use. So please try to speak eloquently. That's very important from the perspective of getting recommended in SSB interview. Let's go to the next, which is don't slouch, be straight, be cool but not cold. बेसिकली क्या होता है कि आपको ये सिखा दिया जाता है कि you just have to sit straight and you can't use any of your body movements. आपको हाथ अपने थाइस पे ही रखने and all those things. No, stiffness is not something which we require. Your formal expressions are something which we require, and formal expression does not mean that you have to always be very cold from your body, and it does not only means कि आपको कुछ हिलना डुलना नहीं है. आपके मूवमेंट्स को हम रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते. वॉट वी वॉन्ट टू रिस्ट्रिक्ट इज अननेसेसरी मूवमेंट, एंड दैट इज समथिंग विच वी ऑलवेज डिज़ायर फ्रॉम अ पर्सन हु वॉन्ट्स टू बिकम एन ऑफिसर इन अंडर इंडियन आर्म फोर्सेज. तो आपको अपने आप को स्ट्रेट रखना है, एंड दैट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज स्ट्रेट फ्रॉम योर बॉडी पोस्चर सेज दैट आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव एंड अलर्ट हैं. इफ़ यू स्लाउच देन दैट शोज योर लेस इंटरेस्ट इन एनी ऑफ द टास्क विच इज़ हैपनिंग और एनी ऑफ द सर्कमस्टेंसेज यू आर प्रेजेंट देयर. तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, बट प्लीज़ कीप दिस थिंग इन माइंड दैट आपको
यू हैव टू बी काम बट नॉट कोल्ड। इसीलिए मैंने इस चीज़ को ऐड किया है कि आपको बहुत ही पोलाइटली अपने आप को असेंबल करना है और अपने आप को कन्वे करना है। आपको बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होना है, ईदर फ्रॉम योर वॉइस और फ्रॉम योर बॉडी लैंग्वेज। लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग, which is be mature outside and cheerful inside. There will be a lot of situations जिसमें आपको लगेगा कि आप काफ़ी स्ट्रेस में हो, आप काफ़ी प्रेशर में हो और आप पे प्रेशर बिल्ट भी किया जाता है। इन दैट सिचुएशन आपको पेशेंट रहना है, आपको मैच्योरली बिहेव करना है। आप डेफिनेटली आप अपनी ज़ील एंड कॉन्फिडेंस को दिखा सकते हो, आप अपनी ज़ील एंड कॉन्फिडेंस को अपने एक्शंस के थ्रू शो कर सकते हो, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। बट चीयरफुल रहना भी आपका एक अपना ट्रेट है और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप प्रेशर में रहोगे आपका जो परफॉर्मेंस है डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो हैम्पर होगा। और अगर आप अंदर से चीयरफुल रहोगे तो आप उस प्रेशर को टैकल करने में काफ़ी हद तक सक्षम होगे। इसलिए आपको अंदर से चीयरफुल रहना है और बाहर से पेशेंट एंड मैच्योर रहना है। मैच्योरिटी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डूइंग दैट टास्क एंड चीयरफुलनेस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव of dealing that pressure. Let's go to the next thing. Do not overthink. This is very important. Do not overthink. आप कई बार SSB के रिजल्ट्स, परफॉर्मेंस एंड अदर थिंग को लेके इतना ओवरथिंक करते हो that start hampering your performance, your further task or your result. Please do not do this. Whatever is done and that cannot be undone now. Your results cannot be undone. In case if you get you do not succeed in SSB, do not try to think much because just it will be a waste of time. आप उसको सोचने की बजाय इंस्टीड आप ये सोचो कि हाउ कैन यू इम्प्रूव योर सेल्फ एंड ट्राई टू ऑक्यूपाई योर माइंड विथ समथिंग विच इज़ इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ अ पॉजिटिव रिजल्ट। तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड अगर आपने ये करना शुरू कर दिया तो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड एंड बेटर रिजल्ट इन योर SSB इंटरव्यूज़। Be ordinary yet extraordinary. Basically, armed forces demands ordinary people. They don't want extraordinary people. So don't try to do something which is extraordinary. People think that हम कुछ ऐसा करेंगे जो कि बहुत extraordinary है, like injuries in your और अपने आप को injured करना या फिर किसी को ऐसा दिखाना कि that you are the only one to do something. आप ही God हो. So it's not like that. आपको ordinary रहना है, but आपको extraordinary कैसे रहना है? Extraordinary from the perspective of learning, from the perspective of doing the work. So try to behave like an ordinary person, yet you can be extraordinary in doing the simple task. तो एक छोटी छोटी चीज़ों में परफेक्शन अगर आप अचीव करना चाहते हो, उसको बेटर वे में करना चाहते हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट नॉट समथिंग कि आप कुछ ऐसा करना चाहो जो कि बहुत ही ज़्यादा एक हाई फाई कंटेंट हो या फिर कुछ ऐसा हो जिससे आप काफ़ी अटेंशन गेन करना चाहते हो। ये सारी चीज़ें प्लीज़ डू नॉट डू इन एनी ऑफ योर SSBs. Okay. Last is keep exploring. Why keep exploring? Because exploring is something which always feeds your curiosity, and I always say that curiosity is the best thing to do in any of your SSB exams. तो curiosity को feed करने के लिए आपको explore करना चाहिए. You should be exploring people, you should be exploring places, you should be exploring campus. Because आप campus देखोगे SSB का तो आपको मिलेगा लाइब्रेरी भी है वहाँ पे, स्पोर्ट्स रूम भी है वहाँ पे, काफ़ी सारे लोग शाम को निकलते हैं, they talk, they chit chat, they do get together, they go to the canteens, they go to the nearby places. So all these things I would just advise you to do. Why? Because that is something which suits your personality and which suits your inspiration and aspiration. The last thing is posture. It's very important, but it's very direct as well. तो posture आप जैसा कि नाम से ही समझ जाओ, there is nothing much to say about posture. बट यहाँ एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि posture में हर एक चीज़ आती है, और posture मतलब ये होता है कि आपको अपने पैर नहीं हिलाने हैं, आपको प्रॉपर वे में बैठना है, बट प्रॉपर वे जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको स्टिफ नहीं रहना है। आप अपने हैंड जेस्चर्स को यूज़ कर सकते हो, आईज आर द वेरी गुड कम्युनिकेटर ऑफ योर माइंड, तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। बट posture मीन्स योर कॉन्फिडेंस इन डायरेक्ट, और अगर आपने पॉस्चर को मेंटेन कर लिया तो सम हाउ यू आर एबल टू फैसिलिटेट द असेसर दैट यू आर quite confident in your job. So ladies and gentlemen, this was my video for telling you 9 ways to improve your indirect communication. I hope you have liked my videos. Please watch till the end, press the bell icon and subscribe this channel. Do not forget to share with your friends because that's going to help them a lot. So till the time everybody, Jai Hind.